Now let us talk about the eubacteria. Eubacteria is the another class, another group of the kingdom Monera. One was Archaebacteria, this one is eubacteria. These are true bacteria basically, which are present nowadays and which are evolved later on. They can be divided into main three classes. One is cyanobacteria, blue-green algae, mycoplasma and actinomycetes. We will study these three groups one by one. Let us talk about actinomycetes first. Actinomycetes have the features which resembles to the kingdom fungi, the members of fungi. Okay, basically the fungi, they forms hyphae. This type of structure, thread-like filamentous structures, they are formed by the fungi. These are called as hyphae. And when these hyphae they get intermingled, many hyphae they get intermingled, they form branches like this. It is called as mycelium. Okay, and the cells of the actinomycetes, they forms this type of mycelium. So it is a property of fungi. Therefore, they are called as ray fungi. भाई नाम से confuse नहीं होना बच्चे. Though they are named as ray fungi, but they are the gram-positive bacteria. They are bacteria basically, but show the characters like fungus. Now, important genus of these actinomycetes are Mycobacterium, Frankia. Frankia, they helps in the nitrogen fixation in the leguminous plants. And Streptomyces. Streptomyces is very important genus bache, because scientists have made many antibiotics from this particular genus. So large number of antibiotics are obtained from this particular genus. This is about the actinomycetes. Now we will be talking about cyanobacteria. Cyanobacteria habitat is mostly they are freshwater forms. Few can be marine water forms, and they can be present in the terrestrial soil, but it should be moist. Terrestrial means land. They forms algal bloom. Now what is this algal bloom? बेटा algal bloom का मतलब ये हुआ कि मान लो this is the water surface here, this is the water surface, okay. What happens, ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं वो इस वाटर सरफेस के ऊपर यहाँ पे ग्रो करते हैं. वो अपनी ग्रोथ इतनी एक्सटेंसिव ग्रोथ कर लेते हैं कि सारा का सारा सरफेस इन्होंने कवर कर दिया अपनी ग्रोथ से. They are showing very extensive growth and they have covered almost all the surface of the water. सनलाइट वहां से ट्रैप कर रहे हैं सन में से, और वाटर सारा वाटर बॉडी में से ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ये एक्सटेंसिव ग्रोथ करते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं. और इसकी वजह से नुकसान बच्चे क्या हुआ कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल सरफेस के नीचे थे उनको ऑक्सीजन की कमी होगी, सनलाइट नहीं मिल रही है, दे विल स्टार्ट टू डाई. और एक ये क्या कर रहे हैं, एक्सटेंसिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लूम, एल्गल ब्लूम. ओके, तो एल्गल ब्लूम इज शोन बाय द मेंबर्स ऑफ cyanobacteria. If these cyanobacteria they are unicellular, we can give an example of spirulina. Spirulina अगर कभी होगा तो cyanobacteria है और it is unicellular cyanobacteria. Filamentous है, filament like structure है, तो they are oscillatoria. And अगर वो कॉलोनी में प्रेजेंट है तो एग्जाम्पल देंगे हम एनाबीना और माइक्रोसिस्टिस का. सभी के आसपास, सेल के आसपास एक म्यूसिलेज की लेयर है, एक जिलेटिनस लेयर है, एक स्लाइमी सी लेयर है जो कि वाटर को होल्ड करती है और सेल को ड्राई होने से बचाती है. What I was saying कि the colonial, एनाबीना एंड माइक्रोसिस्टिस हैं, और ये जो तीनों की तीनों आपके पास कैटेगरीज हैं, चाहे we are talking about unicellular or we are talking about filamentous or we are talking about the colonial, हर एक के आसपास, सेल के आसपास म्यूसिलेज की लेयर प्रेजेंट है, और म्यूसिलेज की जो लेयर है that helps in holding the water and preventing the cell from drying. Cells basically they are non-motile because flagella they are absent.
Cell wall is made up of peptidoglycan here. Okay, cell wall is made up of peptidoglycan. They are chemoautotrophs. Sorry, they are photoautotrophs. They are not chemoautotrophs, बच्चे. But chromatophores are special structures. These are the inner extension of the plasma membrane. तो plasma membrane क्या कर रही है, अंदर वाली साइड में extend कर जा रही है, और यहाँ पे इनके पास क्या होते हैं, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और पिगमेंट्स कौन कौन से, लाइक क्लोरोफिल ए, आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर सी फाइकोसाइनिन, और कुछ बुक्स में आर फाइकोसाइनिन भी होता है. ये जो आपके पास क्लोरोफिल ए है, बेसिकली ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है. आर फाइकोएरिथ्रिन इज ऑफ रेडिश कलर, और फाइकोसाइनिन इज ऑफ ब्लू कलर पिगमेंट. और मेन जो ब्लू और ग्रीन कलर पिगमेंट है, ये यहाँ पे अपीयर करते हैं, जिस वजह से इसको साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते हैं. ओके बच्चे, दे आर फोटोऑटोट्रॉप्स. ठीक है, नॉट कीमो. कीमो होते नहीं है, कीमो आर ओनली बैक्टीरियाज, दूसरे वाले बैक्टीरियाज, है ना. स्टोरेज, अब क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो खाना भी तो बना रहे होंगे, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट भी बना रहे होंगे, और जो स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट होती है दैट इज साइनोफाइसिन स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं जिनमें अमीनो एसिड भी हो सकते हैं प्रेजेंट, और कुछ गैस वैक्यूल्स में भी देयर. इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट. क्या होता है हेटेरोसिस्ट? दीज आर थिक स्ट्रक्चर्स and they helps in the fixation of nitrogen because they are having enzyme nitrogenase, so helping in the nitrogen fixation. ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर. ये जो सेल्स हैं, these cells they are normal cells and they are having these chromatophores due to which they are releasing oxygen. ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं. बट ये जो हेटेरोसिस्ट है ना, यहाँ पे है एक, यहाँ बनाया हुआ और एक यहाँ पे बनाया हुआ. ये जो हेटेरोसिस्ट होता है, ये ऑक्सीजन को पसंद नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ काम नहीं करता. ये बोलता है मुझे काम करना है नाइट्रोजन के साथ में, बिकॉज मेरे पास नाइट्रोजिनेज है. तो नाइट्रोजिनेज होने की वजह से ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और ये हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू अदर सब्सटेंसेस. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा. देन एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरियाज बेसिकली विच आर बिलोंगिंग टू साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया. ये जो सारे के सारे मेंबर्स हैं ना बच्चे, ये फ्री लिविंग फॉर्म में अगर ऐसे अकेले हैं तब भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और अगर किसी के साथ में एसोसिएट हो गए हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के साथ में, प्लांट के साथ में एसोसिएट हो गए हैं, तो ये वहां पर भी नाइट्रोजन को फिक्स करने में एबल होते हैं. कुछ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं. साइकस के बारे में आपने सुना होगा, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं साइकस प्लांट. इनकी दो तरह की रूट्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल रूट्स, एक होती है कोरेलवाइड्स रूट्स. ये जो कोरेलवाइड रूट्स होती हैं, इनमें प्रेजेंट होती हैं एनाबीना और नोस्टॉक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इन द साइकस. ओके, एजोला एक वाटर फर्न है, और इसमें स्पेशली एनाबीना इसके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अबाउट एजोला सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अबाउट एजोला ये है कि अगर एजोला को ऐसा कहा जाता है, राइस फील्ड में ग्रो करा जाता है, अलोंग विद द राइस फील्ड में एजोला को भी ग्रो करेंगे, तो 50% प्रोडक्शन बढ़ जाती है ऑफ राइस. क्यों? क्योंकि वहां पर एनाबीना भी इसके साथ है, और वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं. नाइट्रोजन एज अ बायो फर्टिलाइजर एक्ट कर रहा है, फर्टिलाइजर एक्ट कर रहा है, और राइस की फील्ड में राइस को ग्रो करता जा रहा है. तो एजोला जो होता है, whenever it is coming in symbiotic association with Anabina, it act as biofertilizer, source of biofertilizers, particularly in the rice field. Lichens, मैंने आपको बताया था lichens में fungi और algae components हैं, और जो algal component है that is Anabina and Nostoc. Now mycoplasma, the third category, they are also known as PPLO. PPLO is pleuropneumonia like organism because they cause pneumonia in the kettles.
तो ये कैटल्स में निमोनिया कॉज करते हैं, इसको इसीलिए इनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया गया है। ये जो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही छोटे साइज के हैं, सबसे छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म है, और साइज कितना 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶ मीटर। दे आर यूनिसेल्युलर, वी नो वेरी वेल, प्रोकैरियोट सारे के सारे यूनिसेल्युलर ही हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है बच्चा, इनकी सेल वॉल होती नहीं है, और अगर इनकी सेल वॉल नहीं होती है तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है, चेंज करते रहेंगे अपनी शेप को। एंड दिस इज द रीजन इनको कहा जाता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। रीजन कि हम पढ़ रहे हैं मोनेरा और बोला प्लांट किंगडम, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था उसी वक्त उस टाइम भी माइकोप्लाज्मा की स्टडी हो चुकी थी, और माइकोप्लाज्मा को हम उस ग्रुप में प्लांटी में तो उस टाइम रख चुके थे, तो इसीलिए उस टाइम से ही ये नाम पड़ा है। तो इसको ऐसे ही अभी भी पढ़ा जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। पेंसिलियम भी इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता है, पेंसिलियम इसके ऊपर इनइफेक्टिव है, बिकॉज पेंसिलियम हमेशा ही सेल वॉल के ऊपर एक्ट करता है, और सेल वॉल इसमें है ही नहीं, पेंसिलियम का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे। और इसमें जो डीएनए है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वेदर इट इज डबल स्ट्रैंडेड लॉन्ग coiled thread-like DNA. Double-stranded, long coiled thread-like DNA is present in the mycoplasma as a genetic material. They are also facultative anaerobes mostly. Facultative means basically तो anaerobes ही हैं, but कभी-कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये रिस्पायर कर लेते हैं। Asexual reproduction होती है, सेक्सुअल तो हो ही नहीं सकती। Asexual reproduction by binary fission. Binary fission means एक सेल है उससे दो सेल्स बन रहे हैं। ये जो सेल्स है, ये जो सेल है, ये डिवाइड हो गया इनटू 2, ब्रेक हो गया इनटू 2, ठीक है, बाइनरी 1 to 2। देन ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये डिजीजेस कॉज कर सकते हैं इन द प्लांट्स एज वेल एज इन द एनिमल्स। अब प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीजेस? लिटिल लीफ डिजीज इन द ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, विच इज ब्रूम ऑफ पोटैटो एंड लेग्यूम्स। ठीक है, ब्रिंजल में जो लीव्स होंगी छोटी छोटी हो जाएंगी, जो पपाया का जो टॉप होगा वो बंच बन जाएगा लीव्स का, और वो लीव्स कुछ गंदी खराब सी हो जाएंगी। झाड़ू देखा है जो हम बोलते हैं, जो हैरी पॉटर का जो झाड़ू था, वैसा विच इज ब्रूम, वो पोटैटो की जो लीव्स होंगी वो कुछ उस तरह की हो जाती हैं। इसका मतलब डिजीज है, काम नहीं कर पा रही, लीव्स खत्म है, तो खाना कहां से बनेगा, है ना। एनिमल्स में एक तो मैंने बोला कैटल्स में वो निमोनिया कॉज करते हैं, दूसरा माइकोप्लाज्मल यूरिथराइटिस इन द ह्यूमन बींग्स। तो यूरिथराइटिस एक डिजीज है जो माइकोप्लाज्मा की वजह से भी हो सकती है कभी कभी इन द ह्यूमन बींग्स। तो इट इज अबाउट माइकोप्लाज्मा।